नमस्कार, वीएनएम न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रंजना दवे। देश दुनिया की छोटी बड़ी खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। आखिरकार संसद में बोले मोदी, मणिपुर पर बोलने के बजाय विपक्ष पर ही हमलावर। गुजरात के पत्रिका कांड में भाजपा के नेता ही शामिल, कांग्रेस ने की जांच की मांग। और कॉमन यूनिवर्सिटी एक्ट का अमित चावड़ा ने किया विरोध, एमएसयू के सेनेट सिंडिकेट सदस्यों संग बैठक। मणिपुर हिंसा मुद्दे लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर 3 दिनों से चल रही बहस के आखिरी दिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में केंद्र सरकार की वाहवाही की। संसद में अविश्वास प्रस्ताव पर बहस के तीसरे दिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष को जवाब दिया। प्रधानमंत्री ने अपने बयान में कहा कि सभी ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। देश की जनता ने हमारी सरकार के प्रति बार बार जो विश्वास जताया है, मैं देश के कोटि कोटि नागरिकों का आभार व्यक्त करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। कहते हैं कि भगवान बहुत दयालु हैं। भगवान की मर्जी होती है कि वो किसी न किसी के माध्यम से अपनी इच्छा की पूर्ति करते हैं। मैं भगवान का आशीर्वाद मानता हूँ कि उन्होंने विपक्ष को सुझाया और वे इसका प्रस्ताव लेकर आए। 2018 में ईश्वर का आशीर्वाद था कि वे अविश्वास प्रस्ताव लाए थे। उस वक्त भी मैंने कहा था कि हमारी सरकार के लिए ये फ्लोर टेस्ट नहीं है, ये उन्हीं का फ्लोर टेस्ट है। हुआ भी वही। जब मतदान हुआ तो विपक्ष के पास जितने वोट थे उतने भी जमा नहीं कर पाए थे। इतना ही नहीं, जब हम जनता के पास गए तो जनता ने भी पूरी ताकत के साथ इनके लिए नो कॉन्फिडेंस घोषित कर दिया। चुनाव में एनडीए को कहीं ज्यादा सीट्स मिली। एक तरह से विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव हमारे लिए शुभ होता है। आज देख रहा हूं कि आज आपने तय कर लिया है कि एनडीए और बीजेपी 2024 के चुनाव में पुराने सारे रिकॉर्ड्स तोड़कर जनता के आशीर्वाद से वापस आएगी। गुजरात भारतीय जनता पार्टी में इन दिनों पत्रिका युद्ध चल रहा है, जिसकी ठोस जांच की मांग कांग्रेस के विधायक अर्जुन सिंह मोढवाडिया ने की है। हमारा छेल्ला 1-2 महीनाथी આપણે સાંભળીએ છીએ કે ભારતીય જનતા પાર્ટીના પ્રદેશ અધ્યક્ષ હોય કે એમના હોદ્દેદારો હોય, ચૂંટાયેલા એમના પ્રતિનિધિઓ મેયર હોય, એ સહિતના લોકો સામે ભારતીય જનતા પાર્ટીના જ બીજા આગેવાનો પુરાવાઓ સાથેની પત્રિકાઓ, પેનડ્રાઈવ વગેરે એના રાષ્ટ્રીય કક્ષાના નેતૃત્વને તો રજૂઆત કરે જ છે, પરંતુ મીડિયાની અંદર પણ આ પત્રિકાઓની ચર્ચા, લોકોની અંદર પણ ચર્ચા ખૂબ મોટે પાયે છે। તમામ પત્રિકાઓની અંદર એક જ સારાંશ છે કે આ બધા લોકોએ ખૂબ જ મોટે પાયે ભ્રષ્ટાચાર કર્યો છે। બીજા કોઈએ આ કદાચ પત્રિકાઓ બહાર પાડી હોત તો એ વિરોધ કરવાની ટેવવાળા છે કે બીજું કઈ છે, એ કારણ આગળ ધરીને એ વાતને ઉડાવી શક્યા હોત, પરંતુ આ તો એમના જ લોકો અને એમના પણ મોટા નેતાઓ આ પત્રિકાઓ છાપવાનો, વિતરિત કરવાનો દોર ચલાવી રહ્યા છે। અમને એમ હતું કે આવી પત્રિકાઓ બહાર આવ્યા પછી પત્રિકાઓના મુદ્દાઓની તપાસ થશે અને થવી પણ જોઈએ। આજે પણ અમે માગણીઓ કરીએ છીએ કે પત્રિકાની અંદર જે હકીકતો લખી છે એ હકીકતોની તપાસ સ્વતંત્ર એજન્સી મારફત કરાવવી જોઈએ અને એ હકીકતો છે એમાં સચ્ચાઈ શું હતી, કોને શું મળ્યું છે, એની હકીકત પણ બહાર લાવવી છે। પરંતુ એની જગ્યાએ ભારતીય જનતા પાર્ટીના લોકો ને ભારતીય જનતા પાર્ટીના આગેવાનોના ઈશારે આ પત્રિકા કોણે છાપી છે એની તપાસ તો સામાન્ય રીતે એક હેડ કોન્સ્ટેબલ કે જમાદાર દરજ્જાના અધિકારીએ કરવી જોઈએ, કદાચ કોઈ ફરિયાદ નોંધાવે તો। એની જગ્યાએ
આ પત્રિકાની તપાસ સરકાર કે ભારતીય જનતા પાર્ટીના આગેવાનો એવા લોકોને સોંપે છે કે જેમનું કામ ટેરરિઝમ અટકાવવાનું, ટેરરિસ્ટને પકડવાનું, સંગઠિત ગુનાખોરી હોય તો એને અટકાવવાની અને સંગઠિત ગુનાઓની તપાસ કરવાની એવી જે એજન્સીઓ છે, એ સિટી ક્રાઇમ બ્રાન્ચ હોય, એન્ટી ટેરરિસ્ટ સ્ક્વોડ હોય કે સ્પેશિયલ ઓપરેશન ગ્રુપ હોય, જેમણે ક્યારેય આવી પત્રિકાઓની તપાસ કરી નથી. અને એ આ એજન્સીઓને પણ સરકાર તપાસ ટ્રાન્સફર કરે છે. કોઈ દિવસ સીધી તપાસ એમની પાસે આવતી નથી કે સીધો ગુનો એ લોકો નોંધતા પણ નથી. એ તો કોઈ પોલીસ સ્ટેશન છે, એ પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ નોંધાઈ હોય એના પછી એમને ટ્રાન્સફર ડીજીપી અથવા તો કમિશનર કરતા હોય છે. એની જગ્યાએ એમને સીધા જ ભાજપના આગેવાનોના ફોનથી એમને ત્યાં દરોડા પાડી અને એમની ધરપકડ કરી અને એવા કલમો લગાડે કે જેથી જેલમાંથી છૂટે નહીં, જામીન ન પડે. આ એક પ્રકારે જે ભાજપનું આંતરિક યુદ્ધ ચાલે છે એમાં પોલીસના અધિકારીઓની भूटी भूमिका है. गुजरात कांग्रेस के विपक्ष नेता अमित चावड़ा ने एमएस यूनिवर्सिटी का दौरा करते हुए कॉमन यूनिवर्सिटी एक्ट का विरोध किया. गुजरात कांग्रेस के विपक्ष नेता अमित चावड़ा एमएस यूनिवर्सिटी के दौरे पर आए. इस दौरान उन्होंने कई मुद्दों पर गुजरात सरकार का ध्यानाकर्षण कराते हुए सरकार की मंशा पर सवाल भी उठाए. खासकर कॉमन यूनिवर्सिटी एक्ट के विरोध में उन्होंने सेनेट और सिंडिकेट सदस्यों और छात्र नेताओं के साथ बैठक का आयोजन कर उनके विचार जाने. भारतीय जनता पार्टीना 3 દાયકાના જે શાસનમાં ગુજરાતમાં શિક્ષણનું ખાનગીકરણ થયું, વેપારીકરણ થયું, એના કારણે દિવસે દિવસે શિક્ષણની ગુણવત્તા પણ નબળી થતી જાય છે, શિક્ષણ મોંઘું પણ થતું જાય છે અને ગરીબ સામાન્ય માણસને પોતાના બાળકોને ભણાવવાનું મુશ્કેલ પણ થતું જાય છે. અને એવામાં જ્યારે સત્તાનું કેન્દ્રીકરણ કરવાની નીતિમાં માનવાવાળી આ સરકાર કોમન યુનિવર્સિટી એક્ટ લાવવા જઈ રહી છે. અને આ કોમન યુનિવર્સિટી એક્ટ લાવવાથી ગુજરાતની જે 8 ગ્રાન્ટીન એડ યુનિવર્સિટીઓ હતી કે જેમાં એમએસ યુનિવર્સિટીની સ્થાપના 1949થી કરવામાં આવી હોય અને એ વખતથી આખા વિશ્વ લેવલે એના શિક્ષણ માટે, એના જ્ઞાન માટે ખૂબ મોટી નામના મેળવી હોય, આવી યુનિવર્સિટીની સ્વાયત્તતા ખતમ થઈ જાય એ માટે આ બિલ લાવવામાં આવી રહ્યું છે. આ બિલ આવવાથી આ યુનિવર્સિટીઓમાં જે લોકશાહી વ્યવસ્થા છે એ ખતમ થઈ જશે. જે ચૂંટણીઓ થાય છે જેનાથી સેનેટ ને સિન્ડિકેટના સભ્યો ચૂંટાય છે, એમાં વિદ્યાર્થીઓના પ્રતિનિધિઓ આવે, ટીચિંગ નોન ટીચિંગ સ્ટાફના પ્રતિનિધિ આવે, પ્રોફેસર હોય કે આચાર્યના પ્રતિનિધિ આવે, મેનેજમેન્ટના પ્રતિનિધિ આવે, જાહેર જીવનના શિક્ષણ સાથે જોડાયેલા લોકો પણ એમાં આવતા હોય. પણ આ એક્ટ આવવાથી આ ચૂંટણીઓ ખતમ થઈ જશે, સેનેટ સિન્ડિકેટની વ્યવસ્થા ખતમ થઈ જશે. એટલે ચૂંટાયેલા પ્રતિનિધિને બદલે બોર્ડ ઓફ મેનેજમેન્ટના નામે સરકારના મળતિયાઓ, માનીતાઓ અને યસમેન જે લોકો હશે એવા લોકોની નિમણૂક કરવામાં આવશે. આ બિલ આવવાથી ખાનગીકરણને પ્રોત્સાહન મળશે, સત્તાનું કેન્દ્રીકરણ થશે, લોકશાહી ખતમ થઈ જશે, આ યુનિવર્સિટીની મિલકતો વેચવામાં આવશે અને એના જ કારણે આજે આખા ગુજરાતમાં શિક્ષણ સાથે જોડાયેલા લોકો આ બિલનો વિરોધ કરે છે. કોંગ્રેસ પણ વિરોધ કરે છે. આજે લોકોને સાંભળીએ છીએ, રસ્તા પર પણ વિરોધ કરીશું ને આવનારા દિવસોમાં જ્યારે બિલ વિધાનસભામાં લાવવામાં આવશે ત્યારે પણ कांग्रेस पक्ष एनो विरोध करशे. इसके अलावा अमित चावड़ा ने यूनिवर्सिटी में गांजे के पौधे बरामद होने पर भी सरकार का ध्यानाकर्षण कराया है. सत्ताમાં બેઠેલા લોકો જે શિક્ષણ એમની પ્રાથમિક જવાબદારી છે એમાંથી ક્યાંક ને ક્યાંક હાથ ઊંચા કરી રહ્યા છે. શિક્ષણનું ખાનગીકરણ, વેપારીકરણ થઈ રહ્યું છે અને સરકારમાં બેઠેલા લોકોનું બિલકુલ ધ્યાન શૈક્ષણિક સંસ્થાઓ પાછળ નથી. તમે જોયું હશે થોડા દિવસ પહેલા કે પ્રાથમિક શાળામાં બાળકોને લખતા વાંચતા નથી આવડતું એવો એક આઈએએસ અધિકારીએ રિપોર્ટ કર્યો. શિક્ષકોની ભરતી કરવામાં નથી આવતી, પૂરું ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર નથી અને આજે યુનિવર્સિટી કે કોલેજોમાં જે ગુણવત્તાયુક્ત શિક્ષણ મળવું જોઈએ એના બદલે ગાંજાના છોડ મળે છે. ત્યારે સરકારની નિષ્ફળતાઓ છે.
ડબલ એન્જિનની સરકાર ગુજરાત મોડેલની વાત કરતી હોય, મોદી મોડેલની વાત કરતી હોય, તો આજે ગાંજાના છોડ મળવા હું માનું છું કે આ મોદી મોડેલની ઉપલબ્ધતા છે. પ્રજાના આશીર્વાદ પછી 156 સીટ મળ્યા પછી આ ડબલ એન્જિનની સરકાર ભગવાન ભરોસે ચાલે છે. આજે કોઈનો ક્યાંય કંટ્રોલ નથી. તમામ જગ્યાએ ભ્રષ્ટાચાર બેફામ છે, વહીવટદારોનું રાજ છે. આખા ગુજરાતમાં કોઈ ચૂંટાયેલો પ્રતિનિધિ કે સરકાર નહીં, પણ અધિકારીઓ સરકાર ચલાવે છે. અને સત્તામાં બેઠેલા લોકો ખાલી હપ્તા લેવામાં કે પોતાના ધંધા સેટ કરવામાં વ્યસ્ત છે. એવા સંજોગોમાં દિવસે દિવસે જે અધિકારીઓ બેફામ થતા જોઈ રહ્યા છે, એની પાછળનું એકમાત્ર કારણ છે કે સરકારનો કોઈ પણ જગ્યાએ અંકુશ રહ્યો નથી. મુખ્યમંત્રીની આખી સરકાર ફેલ છે અને એના જ કારણે દરેક કચેરીમાં પૈસા આપ્યા સિવાય કોઈ કામ નથી થતું. સામાન્ય માણસનું કોઈ સાંભળવાવાળું નથી અને સત્તા પર बैठेला लोगों कोई पण जातनो भय के डर रहो नहीं. अविश्वास प्रस्ताव को लेकर लोकसभा में आज दिन भर गहमा गहमी देखने को मिली. लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर बहस के दौरान अधीर रंजन चौधरी और अमित शाह में गहमा गहमी हो गई. कांग्रेस नेता अधीर रंजन ने मणिपुर हिंसा पर कहा, जहां राजा अंधा वहां द्रौपदी का चीरहरण होता है. इस पर अमित शाह ने आपत्ति जताई. उन्होंने स्पीकर से कहा, पीएम के लिए ऐसे बयान देना गलत है, इन्हें कंट्रोल किया जाए. सर बात यह है कि मणिपुर में क्या देखा? मणिपुर में हमें देखा कि हमारे घर की मां बहन को वस्त्रहीन हालत में विवश करके उन पे ऊपर हमला हो रहे हैं, बलात्कार की घटना घट रही है. तो मुझे एक बार ये बोलने का इच्छा हो रहे हैं कि जब राजा अंधा रहते हैं, धृतराष्ट्र जब अंधा रहते थे, उस समय द्रौपदी की वस्त्रहरण हुई थी. आज भी राजा अंधे बैठे हैं, इसलिए किसी को नाम नहीं, किसी को नाम नहीं लिया मैं, किसी को नाम नहीं लिया मैं. तो इसलिए जहां राजा अंधा बैठे रहते, जहां राजा अंधा बैठे रहते, वहां द्रौपदी की वस्त्रहरण चाहे वो हस्तिनापुर में हो, चाहे वो मणिपुर में हो, होते ही रहते. मणिपुर और हस्तिनापुर में कोई फर्क नहीं रहता. आपने एक अपील की थी कि आइदर और साइड से बहस को शांति से सुना जाए. हम बड़े धैर्यपूर्वक सुनते गए. उन्होंने कहा कि हमने ब्रिटिश की कार्य पद्धति हमारी संसद ने अडॉप्ट की है, पूरे देश का अपमान किया, हम चुपचाप बैठे रहे. हमारी संविधान सभा ने ये पूरी प्रक्रिया तय की है, स्वीकार करी है. आगे माननीय अध्यक्ष जी, इसके बाद भी अनर्गल बोलते रहे. अब मैं अभी ये जो प्रयास कर रहे हैं, उनकी पार्टी ने उनको समय नहीं दिया. मेरे बोलने के साथ बात किया जाएगा. आपने समय दिया, उसमें कुछ स्कोर करना चाहते हैं, कुछ मान्यता मगर माननीय अध्यक्ष जी, इस सदन की एक गरिमा है. देश के प्रधानमंत्री जी के बारे में जिस प्रकार का ये उल्लेख कर रहे हैं, मुझे लगता है ये विपक्ष के नेता के लिए शोभा नहीं देता. आपने उनको या तो कंट्रोल करना चाहिए या तो ट्रेजरी बैंक के एमपी भी ये नहीं सुन पाएंगे. इस दौरान विपक्ष ने वॉकआउट किया. हालांकि कुछ मिनट बाद ही वे सदन में वापस आ गए. इस पर सिंधिया ने तंज किया, लो ये वापस आ गए, आपका स्वागत है. देश की जनता ने इन्हें बाहर का दरवाजा दिखा दिया है और ये अब सदन से भी खुद ही बाहर जा रहे हैं. इन्हें अपने अविश्वास प्रस्ताव पर स्वयं ही विश्वास नहीं है. विचित्र स्थिति है कि जिनके दिल नहीं मिलते वो दल मिल चुके हैं. जिनके इतिहास में वैचारिक या व्यावहारिक या सैद्धांतिक संबंध ना हो, वो लोकसभा चुनाव के लिए एक साथ आए हैं और लोकतंत्र बचाओ की बात कर रहे हैं. अगर भारत के इतिहास के काले पन्ने पलटें तो मैं पूछना चाहता हूं कि 1964 बंगाल दंगे के समय ये मौन क्यों थे? 84 के सिख दंगों के समय ये मौन क्यों थे? 87 के मेरठ दंगों के वक्त मौन क्यों थे? 1990 से 30 साल तक कश्मीर में 40,000 लोगों की मौत हुई, तब ये मौन क्यों थे? अधीर जी का जो शब्द था, हर सुबह नई विधवाएं रोती हैं, बच्चे रोते हैं, नए घर बनते हैं, तब ये सरकार में मूक दर्शक बनकर देख रहे थे. इससे पहले दोपहर 2 बजे लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश की इकोनॉमी पर स्पीच दी थी.
इसके बाद AIM सांसद असुद्दीन ओवैसी ने लोकसभा में कहा, कल गृह मंत्री ने भारत छोड़ो आंदोलन का जिक्र किया था। अगर इन्हें पता चल जाए कि भारत छोड़ो का नारा एक मुसलमान ने दिया था तो अमित शाह भी नहीं बोलेंगे। मैं PM से पूछना चाहता हूं कि क्या देश बड़ा है या हिंदुत्व गोलवलकर की विचारधारा बड़ी है। उधर मणिपुर मुद्दे राज्यसभा में प्रधानमंत्री मोदी को बुलाने को लेकर विपक्ष ने नारेबाजी की। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, हम PM को बुलाना चाहते हैं लेकिन भाजपा वाले कहते हैं कि वो नहीं आएंगे। वो क्यों नहीं आएंगे? वो आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा? वो प्रधानमंत्री हैं, कोई परमात्मा नहीं। नारेबाजी बढ़ी तो राज्यसभा 2 बजे तक स्थगित कर दी गई थी। 2 बजे कार्यवाही फिर शुरू हुई और फार्मेसी संशोधन विधेयक 2023 राज्यसभा में पारित हो गया। लोकसभा में ये विधेयक 7 अगस्त को पास हुआ था। इसके बाद हंगामे के चलते राज्यसभा की कार्यवाही शुक्रवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गई। 12वीं की पढ़ाई करने के बाद IIM जैसे प्रतिष्ठित कॉलेज में एडमिशन का सपना साकार करने वाले वडोदरा के 4 छात्रों ने वडोदरा का गौरव बढ़ाया है। देश के प्रतिष्ठित कॉलेज IIM में एडमिशन लेना हर छात्र का सपना होता है। उस सपने को पूरा करने के लिए छात्र कड़ी मेहनत करते हैं। IIM प्रवेश के लिए 12वीं कक्षा के बाद एंट्रेंस एग्जाम ली जाती है, जिसमें अलग अलग पैमानों पर छात्रों को परखा जाता है। इस परीक्षा के लिए देश भर के छात्र तैयारी करते हैं। वडोदरा में IMS इंस्टीट्यूट द्वारा इस परीक्षा की तैयारी करवाई जाती है। उनमें से 4 छात्रों ने IIM में प्रवेश प्राप्त किया है, जिस पर वडोदरा के IMS इंस्टीट्यूट द्वारा खुशी जाहिर की गई। इन 4 छात्रों में नवनीत चौरसिया, जैद खोकर, ऋषि सिसोदिया और हेली आचार्य शामिल हैं, जिनमें से नवनीत चौरसिया ने ऑल इंडिया में 10वां स्थान हासिल किया है। IIM है वो इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटी है और ऑल इंडिया का कंपटीशन होता है, तो इसमें संघर्ष तो बहुत ही रहा। बट मैं अपने पापा को बहुत थैंक यू कहना चाहूँगा, जिनकी वजह से मैंने IIM का इंटरव्यूज़ और वो सब क्रैक कर पाया। उनकी मेहनत से ही मैं इतना आगे आ सकता हूँ। वैसे वो खुद लाइट के थामले के नीचे बैठ के पढ़ते थे और उन्होंने अभी वो डेप्यूटी डायरेक्टर है इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में, तो उनसे वो मेरे को उनसे मैं खुद बहुत ही मोटिवेट होता हूँ। और मेरी मम्मी जो घर पे मुझे बहुत ही मोरल सपोर्ट देती है एंड शी इज़ द वन जो मेरा इतना केयर भी करती है, तो मैं सबको थैंक यू कहना चाहूँगा। और इधर IMS की जो फैकल्टी है वो भी बहुत ही ग्रेट है। पूरे गुजरात में सबसे अच्छी फैकल्टी यहाँ पे ही है। तो उन सबकी मेहनत और मेरी 3 मंथ्स का जो डिफ़िकल्ट मेरा टाइम टेबल था और मेरा रेगुलर जो स्टडी थी, उसकी वजह से मैं IIM इंदौर क्रैक कर पाया हूँ। तो मैं बहुत ही अच्छा अनुभव कर रहा हूँ। मेरा IIM में सिलेक्शन हुआ 12th के डायरेक्टली बाद। बहुत कम सीट्स होती है बिकॉज डेफिनेटली नेशन की सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट्स है और मैंने इसके लिए मेहनत चालू की थी 2 साल पहले और मैंने IMS ज्वाइन किया था यही ड्रीम से कि मैं IIM में जाऊंगी। IIM इंदौर, रांची, रोहतक, जम्मू, बोध गया, ये 5 IIMs है जो 12th के बाद तुरंत देती है और बहुत टफ कंपटीशन होता है इन सब में। करीब 30,000 जितने लोग देते हैं ये एग्ज़ाम और सारी कैटेगरीज़ की अलग अलग नंबर ऑफ़ सीट्स होती है। और मैं इसके लिए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होता है एक सेक्शन और एक वर्बल का इंग्लिश का सेक्शन होता है और मेरा इंग्लिश कंपैरेटिवली अच्छा था तो मुझे क्वांटिटेटिव वाले सेक्शन में थोड़े चैलेंजेस हुए। बट आई एम ग्लैड कि यहाँ के मेंटर्स थे, उन्होंने मुझे दिया कि 5 या 6 घंटे क्लास के अलावा अलग से पढ़ो, सेल्फ स्टडी करो और ये सारा मटेरियल दिया। पूरा एक उनका पोर्टल है जिस पे जाके हम लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं जो भी हमने पढ़ा है और टेस्ट होते हैं यहाँ पे जो हमारा पोटेंशियल डिसाइड करते हैं और हमें और कितनी मेहनत करनी है वो हमें बताते हैं। सर भी पर्सनली मेंटरिंग करते हैं हमारी। और अभी ये सारी जो एग्ज़ाम्स थे उसमें बीच में हम लोग को कई बार वो भी हो जाता था नहीं होगा या ये होगा वो होगा, तो हमेशा पेरेंट्स और मेंटर्स बोथ ऑफ देम आर देयर कि हमेशा हमें सपोर्ट करें कि नहीं ये तुम्हारा है ये पोटेंशियल, तुम मेहनत जिस चीज़ के लिए कर रहे हो वो हो सकता है। देखने जाए तो ये तैयारी बहुत ही मतलब डिफ़िकल्ट तैयारी होती है बिकॉज ये बच्चे जो कि 11th स्टैंडर्ड से अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं, उनको अपने स्कूल कुछ ट्यूशन क्लासेस के साथ साथ इसकी प्रिपरेशन करनी होती है। एक IP MET करके एग्ज़ाम होती है जो उनको देनी पड़ती है। इंदौर अपनी अलग से एग्ज़ाम लेता है, रोहतक अपनी अलग से, तो उनको बहुत सारी मल्टीपल एग्ज़ाम्स देनी होती है। सिर्फ एग्ज़ाम देने से वो लोग अपने स्कोर लाएंगे उससे वो सिलेक्शन होगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। उसके बाद भी उनको सेकंड राउंड ऑफ मतलब जैसे कि पर्सनल इंटरव्यू होता है, ग्रुप डिस्कशन होता है, वो क्लियर करना पड़ता है। उनके बाद जाके उनका फाइनल सिलेक्शन
होता है। तो ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है जिसको फॉलो करना पड़ता है। यहाँ पे IMS की बात करें तो हम लोग यहाँ पे बच्चों को उस तरीके से प्रिपरेशन करवाते हैं जिसमें बच्चे आराम से उसको प्रिपेयर कर पाए, जिसमें उनको अपना बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी तैयारी करनी, उनका भी हम लोग समय देते हैं। संडे बच्चों को बुलाते हैं, 24/7 लाइब्रेरी होती है, बच्चे रात को 2 बजे भी आके यहाँ पे बैठ के पढ़ाई कर सकते हैं। वो डाउट डेस्क है, IMS का ऑनलाइन पोर्टल है, मतलब बहुत सारा चीज़ लगता है इसको एक बच्चे को फ्रॉम गुजरात टू मेक देम रीच टू IIMs और फ्रॉम वडोदरा टू मेक देम रीच टू IIM इज़ अ वेरी बिग और कॉम्प्लिकेटेड टास्क। IIM के लिए जो एंट्रेंस टेस्ट हुई उसमें बड़ौदा से 4 लोगों का सिलेक्शन हुआ, वो बड़ौदा के लिए और हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। ये जो एंट्रेंस टेस्ट होती है उसमें जनरली 3 सब्जेक्ट्स होते हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड विच इज़ 1 से 10 स्टैंडर्ड तक का मैथ, लॉजिकल रीजनिंग और वर्बल एबिलिटी इंग्लिश। सो बेसिकली बच्चों को हम इन एरिया पे तैयार करते हैं। उसके बाद एंट्रेंस टेस्ट में जब इनका क्लियर हो जाता है तो हम इनको इंटरव्यू की तैयारी भी कराते हैं। सो दीज स्टूडेंट्स आर आस्क्ड लॉट ऑफ क्वेश्चंस अबाउट करंट अफेयर्स एंड देयर पर्सनालिटी इन द इंटरव्यू एज वेल। तो उसके लिए भी हम बच्चों को तैयार करते हैं। हम बहुत ही खुश हैं कि इस साल 4 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। आने वाले समय में ज़्यादा बच्चे IIM में अगर जाना चाहते हैं, अच्छी तरह से प्रिपेयर करते हैं, तो वडोदरा जैसे सिटी से अगर और ज़्यादा लोगों का सिलेक्शन हो, ऐसा हम चाहते हैं और ऐसी हमारी आशा है। ऑल द बेस्ट टू ऑल द किड्स हु आर एस्पायरिंग एंड कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल द किड्स हु गॉट सिलेक्टेड। खबरों का दौर यूं ही चलता रहेगा। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। अनेक वर्षोથી સરકારશ્રી તરફથી અવર્ગ ધરાવતી નામાંકિત બરોડા સિટીઝન કમ્યુનિટી કોઓપરેટિવ ક્રેડિટ સોસાયટી સર્વને શાહુકારો તથા પ્રાઇવેટ ફાઇનાન્સરોના આકરા વ્યાજમાંથી મુક્તિ અપાવે છે। ઓછી વત્તી દરેક પ્રકારની આવક ધરાવતા લોકો માટે ઓછા વ્યાજે સરળ હપ્તે અનેક પ્રકારની લોન ઉપલબ્ધ। ફાઇનાન્સ કંપનીઓ કરતા ઘણા ઓછા વ્યાજ। વાર્ષિક વ્યાજ દર 8.5% શરૂ। अनुकूलता मुजबना EMI। लोन माटे सिविलनी पण जरूर नथी। पेनल्टी वगर लोननी वहेली चुकवणी शक्य। बचत खाता पर पण आकर्षक व्याज मेळवो। तुरंत संपर्क करो बरोड़ा सिटीजन कम्युनिटी कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड, 203B आइवरी टेरेस सर्किट हाउस ની સામે અલકાપુરી વડોદરા। WhatsApp નંબર 9327109414। भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે। આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા। જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ। ઘણી બધી એમ્યુનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર। भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। गुजरात के केवड़िया के एकता नगर में स्थित जंगल सफारी में 3 महीने पहले मादा शेर ने 4 बच्चों को जन्म दिया था, जो अब सैलानियों का आकर्षण बढ़ाने के लिए तैयार है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर सैलानियों का आकर्षण बढ़ाने के लिए जंगल सफारी का निर्माण किया गया है। यहाँ 3 महीने पहले मादा शेर श्रद्धा ने 4 बच्चों को जन्म दिया था। इन चारों बच्चों की एनिमल कीपर और डॉक्टर्स की टीम
द्वारा सुचारू देखभाल की गई, जिसके बाद चारों बच्चे गंगा, जमुना, सरस्वती और नरसिंह को बड़े से पिंजरे में छोड़ दिया गया है, जहां इन शेर के बच्चों की आपस में अटखेलियां आकर्षण का केंद्र बनी हैं। 3 महीनों तक बच्चों को अच्छी देखभाल कर उन्हें पिंजरों में छोड़ दिया गया है, जिसके चलते एनिमल कीपर समेत के स्टाफ के चेहरे भी खुशी से देश के अंतर्गत गुजरात के वडोदरा के रावपुरा में गुजरात विधानसभा के मुख्य दंडक बालकृष्ण शुक्ल की उपस्थिति में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भारत में स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में केंद्र सरकार द्वारा मेरी माटी मेरा देश अभियान शुरू किया गया है। इसी के तहत विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन किए गए हैं। ऐसा ही कार्यक्रम वार्ड नंबर 14 में आयोजित किया गया, जिसमें डांडिया बाजार के तांबेकर वाड़ा, लक्ष्मी व्यायाम स्कूल बाजवाड़ा, बरानपुरा के शिवाजी चौक, वाड़ी टावर, राम चौक, महादेव मंदिर जैसे कई जगहों पर कार्यक्रमों के आयोजन किए गए, जिसमें यहाँ की मिट्टी कलश में भरकर दिल्ली भेजी जा रही है। शहरी और ग्रामीण इलाकों में से 7,500 कलश दिल्ली भेजे जाएंगे और इस मिट्टी से दिल्ली में अमृत वाटिका का निर्माण किया जाएगा। आखा देश में मेरी मिट्टी मेरा देश अंतर्गत अनेकविध प्रकारना कार्यक्रमों है, राष्ट्रभक्तिना कार्यक्रमों है। ये ज कार्यक्रमों अंतर्गत आज आखा वडोदरा शहर में 19 वॉर्ड में क्रांतिकारी आम तो वडोदरा शहर ए क्रांतिकारों की भूमि है। वडोदरानु जे एक ऐतिहासिक महत्व है ये अनेरू है, परंतु वडोदरा शहरना तमाम वॉर्ड में जे पण क्रांतिकारीओ अथवा जे ते वखतना जे समाजकारणीओ छे ए विस्तारनी माटी लईने ए एक अमृत कलशनी जे एक योजना है ते अंतर्गत आज रावपुरा विधानसभा विस्तार में वॉर्ड नंबर 14 में आ प्रकार कार्यक्रम थयो छे। आ अमृत कुंभ भरवाना कार्यक्रम में आत्रे अमारी साथे पार्टीना महामंत्री भाई श्री राकेश भाई, आज विस्तारना काउंसिलर अने वडोदरा शहरना डेप्यूटी मेयर श्रीमती नंदाबेन, हरेश भाई अने सचिन भाईना साथे अमारा आ विस्तारना आ वॉर्डना अध्यक्ष, संगठनना अध्यक्ष सचिन भाई, गोपी भाई साथे सुनीताबेन शुक्ल जे आ विस्तारना अमारा प्रभारी है, तेओनी साथे आखी वॉर्डनी टीम अने कार्यकर्ताओं साथे ज्यारे अहींया एकत्र थया छे त्यारे आपना माध्यमथी तमाम वडोदरा वासीओने पण विनंती करूं छुं के आजादीना आ अमृत महोत्सवमां आपणे एवा संकल्पबद्ध थईए के देशना माटे हवे मरवानी जरूर नथी, देशना माटे जीववानी जरूर छे, पण तेनी साथे साथे देशना सर्वांगीण विकासमां अने छेवाड़ाना मानवीनी आपणे केम करीने सेवा करी सकीए अने राष्ट्रभक्तिथी ओतप्रोत एवा जे चारित्र्य छे ए तमामने याद करीने राष्ट्रभक्तिमां जोड़ाईए ए ज आपनी पासे आजनी विशेष प्रार्थना। गुजरात विधानसभा के विपक्ष नेता अमित चावड़ा आज वडोदरा दौरे पर रहे और उन्होंने सर्किट हाउस में कांग्रेस के नेताओं से बैठक की। 17 अगस्त को गुजरात की राजधानी गांधीनगर में कांग्रेस द्वारा स्वाभिमान धरना प्रतीक उपवास आंदोलन का आयोजन किया गया है, जिसे सफल बनाने के आह्वान के साथ गुजरात विधानसभा के विपक्ष नेता और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अमित चावड़ा वडोदरा आए। अमित चावड़ा ने ओबीसी अनामत बचाओ चिंतन बैठक पर वडोदरा के सर्किट हाउस में मीटिंग ली। इस मौके पर कांग्रेस के नेताओं और पदाधिकारियों की उपस्थिति रही। गुजरात में छेल्ला 3 दायकाथी भारतीय जनता पार्टी सरकार देशना प्रधानमंत्री श्री गुजरात थी आवे छे। आखा देश में ढंढेरो पीटे कि हूँ ओबीसी समाज में आऊँ छूँ, गरीब परिवार में आऊँ छूँ अने एना नामे राजनीति थाय छे, एना नामे आखा देश में मत लेवामां आवे छे। तो गुजरात में 52% वस्ती धरावता ओबीसी समाज ने जो सौथी वधारे अन्याय करवामां आवतो होय तो छेल्ला 30 वर्षना भारतीय जनता पार्टीना शासन में अन्याय करवामां आवे छे। 52% वस्ती छे तेम छतां एना 30 वर्षना बजेटना आंकड़ाओनो अभ्यास करो तो एक पण वर्षना बजेटमां एमां नरेन्द्रभाई मोदी पण 13 वर्ष सुधी मुख्यमंत्री हता ए समयगाळो पण समावेश थाय छे। एक पण वर्षना बजेटमां 52% वस्ती धरावता समाजने बजेटनुं 1% रकम पण फाळववामां नथी आवी। एटले बजेटनी फाळवણીમાં मोटा प्रमाणमां न्याय आ 3 दायकाना भाजपना शासनमां करवामां आवे छे।
એથી આગળ વધી ને ગત વર્ષે ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકારે સુપ્રીમ કોર્ટના એક આદેશને અનુસંધાને ગુજરાતમાંથી ઓબીસી અનામત સ્થાનિક સ્વરાજની સંસ્થાઓ પંચાયતોમાંથી ખતમ કરી. પંચાયતોમાં જે 10% અનામત ઓબીસી સમાજને વર્ષોથી આપવામાં આવતી હતી એ અનામત નાબૂદ કરી અને બજેટની ફાળવણીમાં તો અન્યાય કર્યો, પણ રાજકીય અસ્તિત્વ ખતમ થઈ જાય ઓબીસી સમાજનું એ રીતનું એક વ્યવસ્થિત ષડયંત્રના ભાગરૂપે અનામત નાબૂદ કરવામાં આવી. गुजरात के वडोदरा शहर में सिटी बस स्टेशन के आसपास पार्किंग से यात्रियों को बस की सुचारू सुविधा नहीं मिल पा रही है। वडोदरा में कॉरपोरेशन द्वारा नागरिकों को सार्वजनिक परिवहन सुविधा के रूप में सिटी बस की सुविधा मुहैया कराई गई है। अलग अलग रूट पर सिटी बस चलाई जाती है और सिटी बस रोकने के लिए बस स्टैंड भी बनाए गए हैं, लेकिन ज्यादातर बस स्टैंड कार्यरत नहीं हो ऐसा ही प्रतीत होता है। बस स्टैंड के आसपास वाहनों की पार्किंग दिखती है। न्याय मंदिर मांडवी के इलाकों में तो बस स्टैंड ठेले वालों के सामान से ही भरे रहते हैं। ऐसे में वडोदरा के नागरिक इन बस स्टेशन की सुविधाओं का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। कई बार बस स्टेशन के आगे ही पार्किंग के चलते बस कब आती है और कब निकल जाती है पता ही नहीं चलता है। ना ही ट्रैफिक विभाग इस मामले को गंभीरता से लेता है और ना ही वडोदरा महानगर पालिका को इन समस्याओं को सुलझाने की फुर्सत है। जब जब ट्रैफिक ड्राइव चलाई जाती है तब तक वाहन चालकों को दंडित किया जाता है और कई 4 व्हीलर को लॉक लगा दिए जाते हैं, लेकिन सिटी बस स्टैंड के आगे ही पार्किंग करने वाले वाहन चालकों पर कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। ऐसे में नागरिकों को बस स्टैंड की सुचारू सुविधा आखिर कैसे मिलेगी? स्मार्ट प्रोजेक्टની વાતો થઈ રહી છે, પરંતુ વડોદરા શહેરની અંદર જે વિટકોસ બસ ચાલી રહી છે, આજે એમના જે કેટલા પણ વડોદરા શહેરની અંદર તમે ફરીને જોઈ શકો છો કે જેટલા પણ બસ સ્ટેન્ડ બનાવવામાં આવે છે હાલમાં ખંડેર હાલતમાં છે, ત્યાં આગળ ભિક્ષુકો સૂતા હોય છે। એટલે કહેવાનો મતલબ કે વડોદરા શહેર સ્માર્ટ સિટીના જે કહેવાય છે બસ સ્ટોપ સ્માર્ટ બનાવ્યા છે, તો સ્માર્ટ બસ સ્ટોપની હાલત તમે જોશો કે એકદમ કફોડી થઈ ગઈ છે। બીજી બાબત એ છે કે જે સ્માર્ટ બસ સ્ટેશન બનાવ્યા છે એની આજુબાજુની અંદર 4 વ્હીલર પાર્કિંગ થતી હોય છે, 2 વ્હીલર પાર્કિંગ થતી હોય છે, તો વડોદરા શહેરનું ટ્રાફિક પોલીસ તંત્ર શું કરી રહ્યું છે સમજાતું નથી। બીજી બાબત એ છે કે જ્યારે જ્યારે વડોદરા શહેરની અંદર જે પણ કંઈક ટ્રાફિકની અડચણરૂપ થતા હોય ત્યારે 2 વ્હીલર ચાલકોને જે ક્રેન મારફતે ઉઠાવી લેવામાં આવે છે, પરંતુ 4 વ્હીલર ચાલકોને કોઈ પણ જાતની અડચણ કરવામાં નથી આવતી। કાયદો સૌના માટે એક સરખો રાખવો જોઈએ। માટે સાથે આવનારા દિવસોમાં જે બસ ચાલુ કરવાના છે ઇલેક્ટ્રિક બસ, તો અમારી ખાસ માંગણી છે કે જે સ્માર્ટ બસ સ્ટોપ છે એમને વ્યવસ્થિત રીતે સુંદર આયોજન કરવામાં આવે અને જે પણ નડતરરૂપ હોય તેને તાત્કાલિક ધોરણે दूर કરવામાં આવે તેવી અમારી માંગ છે। गुजरात के वडोदरा के समाज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आजादी के अमृत महोत्सव और G20 सेलिब्रेशन के भागरूप पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा टेनिस टूर्नामेंट आयोजित की गई है। गुजरात के वडोदरा शहर में पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित 3 दिवसीय अंतर क्षेत्रीय टेबल टेनिस प्रतियोगिता का प्रारंभ हुआ है, जिसका प्रारंभ पावर ग्रिड वेस्टर्न जोन 2 के कृष्ण कुमार और चीफ जनरल मैनेजर S.J. लाकड़ा और TTAB के सेक्रेटरी कल्पेश ठक्कर समेत के अग्रणियों की उपस्थिति में किया गया। पावर ग्रिड हर साल अपने कर्मचारियों के लिए चेस, बैडमिंटन समेत की कई खेल गतिविधियों का आयोजन करता आया है, जिससे मानसिक और शारीरिक विकास कर्मचारियों का सही रूप से हो सके, साथ ही उनमें खेल भावना का विकास हो। इस प्रतियोगिता में पावर ग्रिड कॉरपोरेट ऑफिस की 11 टीमें हिस्सा ले रही है। 11 टीमों के 79 खिलाड़ी इस प्रतियोगिता में शिरकत कर रहे हैं। ये बहुत आपका कबड्डी भी होगा, फुटबॉल, क्रिकेट, टेबल टेनिस, देन टेनिस, शटल, चेस, कैरम, बहुत ऑलमोस्ट वी कैन से अराउंड 10 गेम्स का मिनिमम इम्पोर्टेंस दे रहा है। ये मेनली टू मोटिवेट द एम्प्लॉयज है, टू गिव। इसमें आप देख सकते हैं फीमेल एम्प्लॉय भी है, वो लोग कभी पार्टिसिपेशन है इसमें। सारा गेम अभी इधर भी मेल का भी इंडिविजुअल गेम होगा, टीम का भी होगा, सिमिलरली फीमेल का भी होगा। अपना PSU है और पावर ग्रिड जो है खेलकूद प्रतियोगिताओं के लिए भी बहुत प्रोत्साहन करता है। और ये जो प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है ये हमारे पूरा पावर ग्रिड के एम्प्लॉई के बीच में है और यहाँ से हमारी एक पावर ग्रिड की नेशनल टीम निकल के आएगी। इसके अंदर ऑल ओवर इंडिया से सारे हमारे रीजन से कुल जो है 11 टीमें भाग ले रही है। उसमें से जो बेस्ट टीम होगी वो आगे इंटर पावर सेक्टर CPSU में भाग लेगी और वो जो है नेशनल स्तर का हमारा सबसे बड़ा टीम रहेगा।
ये इस तरह की प्रतियोगिता आयोजन करने के पीछे एक्चुअली हमारा जो पर्पज़ है, ये हमारे एम्प्लॉयज़ के बीच में उनको उनके मोटिवेशन लेवल को बढ़ाना है, उसमें आपसी परस्पर भ्रातृत्व भावना को बढ़ाना है, ब्रदरहुड को प्रोत्साहन देना है, और इससे हमारे एम्प्लॉयज़ के जो है वो कार्य करने के शैली में भी विकास होता है। हर साल हमारा ये टूर्नामेंट इंटर रीजन होता है और सभी रीजन से यहाँ लोग आते हैं, हर प्रकार के लोग आते हैं, सभी अपना कल्चर बोल के एक साथ रहते हैं और ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट इनसे निर्माण होता है, टीम स्पिरिट इसमें निर्माण होता है। और आज बड़ौदा सिटी में हम आए, इतनी अच्छी सिटी है, सयाजीराव गायकवाड़ साहब की सिटी है और ये बहुत बड़ा स्टेडियम में आज टूर्नामेंट हो रहा है, उसके लिए हम हमारी ओर से तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। गुजरात के वडोदरा के सांसद रंजनबेन भट्ट के जन्मदिन के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा स्कूली बच्चों को रेनकोट वितरित किए गए। वडोदरा के सांसद रंजनबेन भट्ट के जन्मदिन के मौके पर और भारतीय जनता पार्टी की ओर से वार्ड नंबर 12 में सरकारी स्कूल के बच्चों को रेनकोट वितरण का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर विजय शाह और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की उपस्थिति रही। વડોદરા લોકસભા વિસ્તારના માન્ય સાંસદ શ્રીમતી રંજનબેન ભટ્ટ એમના જન્મદિવસ નિમિત્તે આજે મહાભારતી પ્રાથમિક શાળામાં 600 જેટલા બાળકોને ચોમાસાની ઋતુને ધ્યાનમાં રાખીને રેનકોટ વિતરણના કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું। કાર્યક્રમમાં વોર્ડ નંબર 12ના માન્ય પ્રમુખ શ્રી મહેન્દ્રસિંહ રાઠોડ, નગર પ્રાથમિક શિક્ષણ સમિતિના અમારા સભ્ય નિશિતભાઈ દેસાઈ, હુકમચંદ, હર્ષદભાઈ પરમાર, કોર્પોરેટર રીટા સિંહ અને સૌ કાર્યકર્તાઓ ઉપસ્થિત રહ્યા। 600થી વધારે બાળકો એમને આજે આ વિતરણનો કાર્યક્રમ રાખ્યો છે અને બાળકો વતી વડોદરા શહેરના સૌ નાગરિકો વતી બેનને સુંદર સ્વાસ્થ્ય મળે, જે રીતે બેન લોકસેવાના કામોમાં જોડાયેલા છે તે જ રીતે આ કામ વધારે ને વધારે તેજીથી કરી શકે એના માટે પ્રભુ તેમને બળ આપે એવી જ પ્રાર્થના। 14 अगस्त को गुजरात के वडोदरा शहर में स्वतंत्रता पर्व के उपलक्ष्य में आयोजित तिरंगा यात्रा के आयोजन की तैयारी वडोदरा कॉर्पोरेशन द्वारा की जा रही है। स्वतंत्रता पर्व 15 अगस्त नजदीक है। 76वें स्वतंत्रता पर्व के मौके पर देश भर में विभिन्न आयोजन किए गए हैं। गुजरात के वडोदरा शहर में स्वतंत्रता पर्व के उपलक्ष्य में स्वतंत्रता पर्व की पूर्व संध्या पर वडोदरा महानगर पालिका, पुलिस और जिला प्रशासन द्वारा तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया है, जो वडोदरा के पोलो ग्राउंड से आयोजित होकर गांधीनगर गृह तक निकाली जाएगी। इस कार्यक्रम के आयोजन की तैयारियां कॉरपोरेशन और जिला प्रशासन द्वारा की जा रही है। इसी के तहत कॉरपोरेशन की स्थायी समिति के चेयरमैन डॉक्टर हितेंद्र पटेल, पुलिस अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारियों ने पोलो ग्राउंड का दौरा किया और यहां के आयोजन के बारे में विचार विमर्श किया। हम सब जानते हैं आने वाले टाइम में 15 अगस्त आ रही है और उसी तहत पिछले साल जिस प्रकार से 14 अगस्त को एक हर घर तिरंगा यात्रा का प्रावधान किया गया था, इस बार भी 14 अगस्त शाम को 4 बजे से कीर्ति स्तंभ मुकाम से जो यात्रा चलेगी, वहाँ हमारे महानुभाव आएंगे। शुभेच्छा से सभी लोग को हम निमंत्रण देते हैं कि हर घर तिरंगा यात्रा में सम्मिलित हो। यहाँ कीर्ति स्तंभ से शुरू होगी, खंडेराव मार्केट होकर, भगत सिंह स्टैच्यू से होकर, न्याय मंदिर से आगे सुरसागर की ओर से गांधीनगर गृह में इसका विराम है। वहाँ विशाल जन संबोधन होगा, जनसंख्या को जो सभा होगी और हर एक स्कूल वाले, हर एक एनजीओ, हर एक पुलिस वाले, जो लोग जुड़ने वाले हैं योग के माध्यम से, धार्मिक लोग भी जुड़ेंगे और आप प्रेस मित्र जो ये प्रचार कर रहे हैं उनको भी हम धन्यवाद देते हैं कि ये मैसेज को लोगों तक पहुँचे। फिर से बोलता हूँ, 14 अगस्त सोमवार को शाम को 4 बजे से कीर्ति स्तंभ से ये यात्रा का शुरुआत होगा। गुजरात के वडोदरा के लक्ष्मीपुरा में स्थित NS रामी स्कूल में वर्ल्ड लॉयन डे के मौके पर छात्रों ने शेर के मुखौटे पहनकर रैली निकाली। 10 अगस्त के दिन को पूरे विश्व में वर्ल्ड लॉयन डे के रूप में मनाया जाता है। वर्ल्ड लॉयन डे के उपलक्ष्य में NS रामी स्कूल में खास आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों को शेरों के बारे में जानकारी दी गई। इस मौके पर एक रैली का भी आयोजन किया गया, जिसमें बच्चे शेर का मुखौटा पहनकर शामिल हुए। आज समग्र विश्व में वर्ल्ड लॉयन डे का सेलिब्रेशन हो रहा है
हमारे लिए बहुत, गुजरात के लिए बहुत गर्व की बात है कि समग्र विश्व में एशियाटिक लायन सिर्फ हमारे सौराष्ट्र के गिर पंथक में है, तो गुजरात के लिए बहुत गौरव की बात है। और आज वर्ल्ड लायन डे के सेलिब्रेशन के मौके पर हमने बड़ौदा के अंदर बहुत सी स्कूल में ये कार्यक्रम किया है बच्चों के साथ में। बच्चे भविष्य है और सिंह संवर्धन के लिए उनसे बहुत सारी बातचीत की है, उनको वीडियो वगैरह सब दिखाया है। हमारा पूरा जो कार्यक्रम है सासनगिर वाइल्ड लाइफ डिवीज़न की ओर से है, गुजरात वन विभाग के साथ में हम सहयोगी से काम कर रहे हैं। हमारी संस्था है द एशियाटिक वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन ट्रस्ट। हम लोग पिछले 20 साल से लायन कंजर्वेशन अवेयरनेस पे काम करते हैं। 1913 से लेके आज तक 2023 हमारे पास 600 से ज़्यादा लायन गिर के 9 डिस्ट्रिक्ट में 30,000 स्क्वायर किलोमीटर में घूम रहे हैं। और गुजरात सरकार, गुजरात वन विभाग और वहाँ के स्थानिक लोग शेरों के लिए बहुत सारा काम कर रहे हैं। उसी वजह से शेरों की तादाद बढ़ी हुई है। सिंह संवर्धन के लिए जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट काम करता है उसका वीडियो बताया है हमने बच्चों के साथ में। बच्चों को हमने एशियाटिक लायन के मास्क बांटे हुए हैं और बच्चों के साथ हमने अवेयरनेस के लिए एक रैली का आयोजन किया जो कि बहुत ही बढ़िया रहा और बड़ौदा की जनता ने बहुत ही हमको સપોર્ટ किया है। અનેક વર્ષોથી સરકારશ્રી તરફથી અવર્ગ ધરાવતી નામાંકિત બરોડા સિટીઝન કમ્યુનિટી કોઓપરેટિવ ક્રેડિટ સોસાયટી સર્વને શાહુકારો તથા પ્રાઇવેટ ફાઇનાન્સરોના આકરા વ્યાજમાંથી મુક્તિ અપાવે છે। ઓછી વત્તી દરેક પ્રકારની આવક ધરાવતા લોકો માટે ઓછા વ્યાજે સરળ હપ્તે અનેક પ્રકારની લોન ઉપલબ્ધ। ફાઇનાન્સ કંપનીઓ કરતા ઘણા ઓછા વ્યાજ। વાર્ષિક વ્યાજ દર 8.5% થી શરૂ। અનુકૂળતા મુજબના ઈએમઆઈ। લોન માટે સિવિલની પણ જરૂર નથી। પેનલ્ટી વગર લોનની વહેલી ચૂકવણી શક્ય। બચત ખાતા પર પણ આકર્ષક વ્યાજ મેળવો। તુરંત સંપર્ક કરો બરોડા સિટીઝન કમ્યુનિટી કોઓપરેટિવ ક્રેડિટ સોસાયટી લિમિટેડ, 203B આઇવરી ટેરેસ, સર્કિટ હાઉસની સામે, અલકાપુરી, વડોદરા। WhatsApp number 9327109414। भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर, आपका जॉय, भारत का जॉय। વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે। આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા। જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ। ઘણી બધી એમ્યુનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર। भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर, आपका जॉय, भारत का जॉय।
आपने कहावत तो जरूर सुनी होगी, जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। यहाँ काजी तो नहीं, लेकिन माँ बाप जरूर कुछ ना कुछ कर सकते हैं। दरअसल गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने कानून बनाने का दावा किया है। उन्होंने ये कहा है कि वो एक ऐसा कानून लाने जा रहे हैं जहाँ लव मैरिज के लिए बच्चों को पेरेंट्स की परमिशन की जरूरत होगी। यानी अब माँ बाप की परमिशन के बिना बच्चे लव मैरिज नहीं कर सकते हैं। इस बात पर लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं हैं। कई लोग इसके हित में नजर आ रहे हैं और कई लोग इसके खिलाफ नजर आ रहे हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं युवाओं से इस बारे में। देखते हैं कि उनके क्या ओपिनियन, उनके क्या विचार हैं इस मुद्दे को लेकर। तो ये जो डिसीजन मैंने सुना तो मुझे सरकार की मानसिक अपंगता का ख्याल आता है, क्योंकि ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, उससे खिलवाड़ कर रहा है, आपकी पर्सनल लिबर्टी के साथ खिलवाड़ कर रहा है। आप 18 वर्ष में वोट देने का अधिकार दे सकते हो, लेकिन आप शादी करने के लिए पेरेंट्स का साइन जरूरी है, ऐसा तो बहुत कठिन समस्या हो जाएगी। और बाकी मैं एक केस रिसर्च कर रहा था तो मुझे पटना हाई कोर्ट का एक डिसीजन का कोर्ट का लाइन याद आ गया कि सरकारें ऐसी कानून लेके आ रही हैं जो कोर्ट पे दबाव डाले, और ये कानून लेके आएंगी तो ये फिर कोर्ट में चैलेंज होगा और ये कोर्ट में टिक ना पाएगा। और ऐसे ऐसे जो डिसीजन आ रहे हैं, कॉमन यूनिवर्सिटी एक्ट हो गया, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, हमें इक्वलिटी नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, हमारे फ्रीडम का हनन कर रहे हैं। आपने अपने विचार साझा किए, लेकिन साथ ही साथ कई बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स की मर्जी के बिना जब बच्चे शादी कर लेते हैं तो बाद में उन्हें पछताना भी पड़ता है। तो उस पर आपके क्या विचार हैं? मैम एक्चुअली हम सबको 18 प्लस के बाद वोटिंग का अधिकार मिल जाता है। अगर हम इस तरह के कानून लेके आ रहे हैं तो 18 प्लस होने के बाद हम सरकार चुन सकते हैं, देश की नियति तय कर सकते हैं, तो हम अपने जीवन की नियति क्यों नहीं तय कर सकते? तो इसके बारे में अगर आप इस कानून को लेके आ रहे हैं तो हमको पहले बेसिक स्ट्रक्चर में छेड़छाड़ करनी पड़ेगी। बेसिक स्ट्रक्चर माने मतलब आपको 18 साल का उम्र बढ़ाना पड़ेगा वोटिंग के लिए। मतलब आप देश की नियति तय करने जा रहे हैं और अपनी नियति नहीं तय कर सकते, तो इसके बारे में सोचने की ज़रूरत है। और अगर इसमें हम सब छेड़छाड़ करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ होगा, इक्वालिटी के खिलाफ होगा, फ्रीडम के खिलाफ होगा, लिबर्टी के खिलाफ होगा। तो इसके बारे में विचार करने की ज़रूरत है, सरकार इस पे फिर से विचार करे। इस चीज़ पे मेरा ये विचार है कि ये सही नहीं है, क्योंकि हम अपना लाइफ पार्टनर खुद चूज़ कर सकते हैं। एक इंडिविजुअल के पास अपने ओन राइट्स होते हैं कि उसे किसे चूज़ करना है। सो अगर सरकार इस चीज़ में इंटरफेयर करता है तो ये सही बात नहीं है। और जैसा हमें पता है कि 18 प्लस जो हम वोटिंग राइट्स हैं हमारे पास, तो हम लोग उसमें भी सिलेक्ट कर लेते हैं जो सरकार होती है। तो हमारे पास इतना तो माइंडसेट है कि हम क्या करेक्ट है और क्या गलत है, तो इस हिसाब से गवर्नमेंट को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। इसके अलावा मेरा ये भी क्वेश्चन है कि आजकल जो LGBTQ कपल्स का भी बहुत चल रही है ये बात, तो साथ ही साथ अगर आप किसी लड़के से शादी करना चाहती हैं, किसी लड़की से शादी करना चाहती है, तो वहाँ एक अलग बात हो जाती है कि पेरेंट्स का मानने का चांसेस ज़रूर होता है कि मान जाएंगे शायद, लेकिन LGBTQ के लिए वो शायद बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो उनके लिए क्या ये राइट सही साबित होगा, गलत साबित होगा? उस पर आपके क्या पॉइंट्स हैं? LGBTQ को अभी रिसेंटली इंडिया सपोर्ट नहीं कर रहा है। बहुत सारी कंट्रीज़ है जहाँ पे ये चीज़ सपोर्ट की जा रही है। तो अगर किसी LGBTQ को किसी और से शादी करनी है तो इसके लिए अलाउ नहीं किया जाएगा। तो अगर वो शादी कर लेंगे विदाउट पेरेंट्स एग्रीमेंट तो आई गेस वो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि इंडिया में पेरेंट्स अलाउ नहीं करते इतना जल्दी। जो मैंने उनसे सवाल करा था LGBTQ के बारे में, आपके उन पर क्या विचार हैं? क्या अलग विचार रखती हैं आप? अलग तो नहीं, एक्चुअली सेम ही कह सकते हैं एक तरह से, क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट ने LGBTQ को वैलिड ठहराया है तो फिर कुछ सोच समझ के ही ठहराया होगा, क्योंकि उन्हें भी अपना लाइफ पार्टनर उनके हिसाब से चुनने का अधिकार है। तो फिर अगर उनको भी है तो फिर नॉर्मल सबको होना चाहिए। एंड आई थिंक कि सबको ये राइट होना चाहिए कि वो अपने कपल को खुद ही चुन सकें। एंड क्योंकि इंडिया में देख सकते हैं कि थोड़ा कास्टिज्म पे है, तो फिर लव मैरिज ना थोड़ा वहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है। तो फिर कपल्स तो रेडी हो जाते हैं बट पेरेंट्स नहीं रेडी होते, तो फिर उसको भी ज़रूरत है, क्योंकि हम कह सकते हैं इक्वालिटी लाने की कोशिश कर रहे हैं, सबको समान देखना चाह रहे हैं। तो फिर ये सब चीज़ें अगर आएंगी तो फिर एक तरह से हिंडर करेगी इक्वालिटी में आपको। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि जब भी लव मैरिज की बात होती है तो पेरेंट्स का ईगो बीच में आता है या उनका कंसर्न? ये आपके हिसाब से आप क्या जवाब देना चाहिए? दोनों कंसर्न भी होता है, क्योंकि कुछ लोग होते हैं कि बाद में पछताते हैं। डाइवोर्स रेट भी आजकल आप देख सकते हैं ज़्यादा है, तो फिर वो भी एक तरह से सही है। बट आई विल थिंक कि हमें ये चीज़ तो नहीं लानी चाहिए, क्योंकि आफ्टर ऑल इट्स योर लाइफ, आपको चूज़ करने का पूरा राइट होना चाहिए। जैसे पेरेंट्स की ये ज़्यादा कंसर्न रहती है कि लव मैरिज करेगा तो ज़रूर इसका तलाक हो जाएगा, लेकिन वो चीज़ अरेंज मैरिज में भी हो सकती है। नो डाउट एट ऑल, अरेंज मैरिजेस में भी होता है। तो फिर सामने वाला पर्सन अपने पेरेंट्स को ब्लेम करता है कि मेरे पेरेंट्स की वजह से मेरी लाइफ बर्बाद हुई, लेकिन यहाँ पे आप खुद के डिसीजन को आप वो करेंगे कि हाँ कि
मैंने चुना, मेरी गलती थी, ये सब एटलीस्ट वहाँ पे फिर आप पेरेंट्स को ब्लेम आउट नहीं करेंगे। मेरा आपसे ये सवाल है कि ज़्यादातर ऐसा हो जाता है दैट बच्चे मान ज़रूर जाते हैं कि अगर पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं लव मैरिज के लिए तो इवेंचुअली वो ज़बरदस्ती शादी ज़रूर कर लेते हैं, लेकिन कई बार वो शादी या तो फेलियर हो जाती है या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर उसमें नज़र आते हैं। आपने जो कहा कि अगर खुद डिसाइड करते हो और अगर आगे जाके फेलियर हुआ तो ये सेम चीज़ उसमें भी अप्लाई होती है कि अपने अरेंज मैरिज पेरेंट्स ने करवाया और दोनों एक दूसरे को पहले से जानते तो होते नहीं। लव मैरिज में एटलीस्ट वो एक दूसरे को जानते हैं और खुद का डिसीजन होता है कि हाँ भाई हम रह सकते हैं। वो इतने मैच्योर है ना फिर लोग कि 18-21 एज के दोनों होते हैं मिनिमम, तो एटलीस्ट वो लोग मैरिज करो, उनको इतना तो पता होता है खुद का कि हम इतने बड़े हो चुके तो हम हमारा डिसीजन ले सकते हैं। तो और अरेंज मैरिज की बात आती है तब अरेंज मैरिज में भी ऐसा ही होता है कि एक दूसरे को पहले तो जानते होते नहीं, पेरेंट्स ज़बरदस्ती या कैसे भी मनवा के कैसे भी करा लेते शादी, पर वो एक दूसरे के साथ सेट नहीं होते क्योंकि दोनों इनकम्पैटिबल हो जाते हैं क्योंकि दोनों एक दूसरे को जानते हैं नहीं। अचानक से एक जगह पे दोनों को लाके फिट करा देते, वो भी तो एक गलत चीज़ ही हो गई। और नहीं एक दूसरे को जानो, वो दोनों मैच नहीं होता और उसकी वजह से वो फेलियर तो उधर भी चांसेस उधर भी उतना ही है जितना लव मैरिज के वहाँ पे। तो पेरेंट्स को मान जाए, बच्चे जो कह रहे हैं वैसा मान जाए, एक बार ट्राई कर लेनी चाहिए। एटलीस्ट वो लोग एक दूसरे को दूसरे बच्चे को मिल रहे या तो उनकी फैमिली से मिल के एक बार बात करे तो ज़्यादा बेटर रहेगा मेरे हिसाब से। इन सब ने मतलब ज़्यादातर लोगों के यही पॉइंट ऑफ व्यू है कि ये लॉ नहीं आना चाहिए क्योंकि ये बच्चों के खिलाफ हो जाएगा। लेकिन अगर आपको मैं कहूँ कि इसे एक पॉजिटिव नज़र से देखें तो आपको इसमें क्या पॉजिटिव नज़र आता है? एज इट इज़ ऑलवेज सेड दैट द कॉइन हैज़ टू साइड, तो इस मुद्दे के भी दो पहलू है, एक सही और एक गलत। सही ये है कि जब अगर ये लॉ आता है तो पेरेंट्स का कंसर्न बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस पेरेंट्स ने हमको बचपन से 21 साल तक बड़ा किया है, अगर हम बच्चे उस समय में आकर उस पेरेंट्स को याद ही ना रखें या उनके अगेंस्ट चले जाए तो एक तरह से गलत है। पेरेंट्स आज के ज़माने में इतने मॉडर्न हो गए हैं कि वो लव मैरिज को समझते हैं और उस पर कंसर्न दे सकते हैं। अगर वो कंसर्न नहीं दे रहे हैं तो उसका कोई रीज़न है उसके पीछे और हमें वो जानना ज़रूरी है, जबकि उनके अगेंस्ट जाने से बेटर। तो मेरे यही मानना है कि एक बार पेरेंट्स से बात करके देखना चाहिए, पेरेंट्स को समझाना चाहिए, क्योंकि हमारा ट्रेडिशन अरेंज मैरिजेस का चल रहा है पर आज 21st सेंचुरी में लव मैरिजेस का ज़्यादा है। अगर हम ऑल ओवर वर्ल्ड भी देखें तो डिवोर्स के रेशियो में लव मैरिजेस का रेशियो का डिवोर्स होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है, जिससे अगर कल को अगर दिक्कत होती है तो बच्चा खुद संभालेगा, पर अगर उसके साथ पेरेंट्स रहते हैं तो पेरेंट्स का सपोर्ट बचपन से एंड तक बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। इसमें मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये रहेगा कि हम पहले पेरेंट्स को समझा सकते हैं। हम उनको ये बोल सकते हैं कि आप एक बार लड़की के पेरेंट्स को मिल लो। अगर उसके बाद भी अगर वो नहीं मानते हैं तो उनका पर्सपेक्टिव जानने की ज़रूरत है कि वो क्यों नहीं मान रहे हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। तो यहाँ पे उनका भी पक्ष सुनना ज़रूरी है। एंड बच्चे को बीइंग इन अ लव मैरिज उसको दोनों तरफ से सुनना चाहिए। अपने पार्टनर का, उसकी फैमिली का सुन रहे हैं वो सही है, पर अपने पेरेंट्स का भी एक कहीं ना कहीं पर्सपेक्टिव सुनना चाहिए, क्योंकि इतने सालों से पेरेंट्स जितना अच्छे से आपको जानते हैं उतना वो पार्टनर आपको कुछ सालों में नहीं जान सकता। तो आपके पेरेंट्स आपको ज़्यादा अच्छा गाइडेंस देंगे बजाय आपके पार्टनर के। तो यहाँ पे हम एक बार पेरेंट्स का पर्सपेक्टिव जान सकते हैं। उसके बाद भी अगर भागने का या उसका स्थिति आता है, 2 बार बैठ के सोचिए, क्योंकि इतने सालों से पेरेंट्स ने आपको रखा है ना कि उस पार्टनर ने। तो आप अगर भागते भी हैं तो बदनामी एट लास्ट आपके पेरेंट्स की होगी, एंड वो कुछ सालों की या कुछ महीनों की नहीं, वो लाइफ टाइम की रहेगी। तो आपको कहीं ना कहीं अपने पेरेंट्स के बारे में, उनकी इमेज के बारे में, आपको अपनी इमेज के बारे में भी सोच रखनी चाहिए। और अगर हम बात करें अपने पर्सपेक्टिव से कि कई बार पेरेंट्स, जो मैंने आगे भी सवाल करा था, कि नहीं ही मानते हैं, कई लोग अपने ईगो में आके या समाज का सोचकर, तो उस वक्त फिर ये लॉ कहीं ना कहीं हमारे लिए रॉन्ग प्रूव हो सकता है। कहीं ना कहीं ये लॉ आपको रॉन्ग तो प्रूव करेगा, पर उस जगह पे जहाँ पे आपका पार्टनर एंड आपके जो सराउंडिंग है वो सही साबित होते हैं, ओनली इन दैट केस। पर अगर कहीं कुछ और हो जाए, जैसे हम ऑलरेडी आयशा और इन सब के केसेस देख रहे हैं, तो उसमें अगर कोई कुछ और हो जाए, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूँगी, पर कुछ और हो जाए तो ये लॉ आपको कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट भी करेगा कि पेरेंट्स का कंसेंट ज़रूरी है, उसके अलावा नहीं। मेरा आपसे यही क्वेश्चन था कि आप इस लॉ के बारे में क्या सोचते हैं, दोनों पक्षों की तरफ से, एक बच्चे की तरफ से भी और एक पेरेंट्स की तरफ से भी, तो आप अपने विचार से। हम कई बार देखते हैं कि जब लव मैरिज की बात यंगस्टर्स करते हैं या जब दो लोग अपने पेरेंट्स के साथ या फैमिली के साथ शेयर करते हैं, तो कई बार बच्चे जो होते हैं वो भी काइंड ऑफ
धमकी देते हैं कि अगर आपने मुझे परमिशन नहीं दिया तो हम लोग कुछ अग्रेसिव स्टेप ले लेंगे, या फिर इवन कई बार सुना है कि सुसाइड कर देंगे, और कई बार ऐसा भी सुना है कि पेरेंट्स इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं। तो इस दोनों सिचुएशन में दोनों पार्टी प्रेशराइज्ड और नेगेटिविटी में चले जाते हैं। तो ये सिचुएशन जो होती है अराइज, इसको ध्यान में रखते हुए ये जो लॉ आया है कि पेरेंट्स की परमिशन लेनी चाहिए लव मैरिज में, तो मेरे हिसाब से ये बिल्कुल सही है। और हम ये भी देखते हैं कि देखो, सवाल ये नहीं है कि लव मैरिज करना बुरा है या सही है, मुद्दा यही है कि आप किसी के साथ लव करते हो और फिर मैरिज करना है, तो द थिंग इज़ कि आप अपना जो व्यू पॉइंट है वो पेरेंट्स के साथ शेयर करिए, एक बार उनका भी व्यू पॉइंट जानिए, क्योंकि वो लोग आपको बहुत सालों से जानते हैं। सो सिर्फ इमोशनली नहीं सोचना है, लेकिन कल्चरली और ऑल्सो लॉजिकली व्यू पॉइंट से हमको सोचना चाहिए इस बात को। तो मेरे हिसाब से ये जो लॉ आया है वो बहुत अच्छा है, एंड दोनों के लिए इट वुड बी अ विन विन सिचुएशन फॉर द टू पीपल हु वांट्स टू गेट मैरिड और ऑल्सो फॉर द पेरेंट्स एंड फैमिली पर्सपेक्टिव। इस लॉ को सिर्फ बच्चों के लिए नहीं लाया गया है, साथ ही साथ पेरेंट्स को भी इस बारे में ध्यान देना होगा कि अगर ये लॉ आपके लिए लाया गया है तो आपको भी समझना होगा कि अगर आपका बच्चा आपके पास आके बात करता है तो आप भी उनकी बातें ध्यान से सुने और वो किसे पसंद करते हैं उनके बारे में अच्छे से जाने। आज हमने बात करी युवाओं के साथ उनके विचारों के बारे में, अगली बार ज़रूर हम पेरेंट्स के विचार भी जानने की कोशिश करेंगे। अगली बार आप किस टॉपिक पर बातचीत चाहते हैं ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि आपके कमेंट करे हुए टॉपिक्स पर हम एक टॉक शो लेकर ज़रूर हाजिर हों। जुड़े रहिए वीएनएम टीवी के साथ। वीएनएम टीवी की खबरें अब आप यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम के अलावा OTT प्लेटफॉर्म्स पर भी लाइव देख सकते हैं। डेली हंट, जियो टीवी, वोडाफोन टीवी पर 24 घंटे वीएनएम टीवी आपके लिए उपलब्ध है, तो देखते रहिए वीएनएम टीवी। वीएनएम न्यूज़ रूम से आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए।